العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصبركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم والصلوات ناراض نہیں میں اعلان اپنا خود ہی کرتا تھا جناب اب آپ کے سامنے زید و مجتبی آپ کا 2 ٹکے کا نوکر مجلس پڑھے گا ٹھیک ہے پروردگار عالم باقیان کی یہ صفحہ قضا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام حضرات کا گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں آنا یہاں بیٹھ کے ایک سانس لینا تسبیح پاک بطول کے صدقے میں مالک عظیم عبادت شمار فرمایا جو حاجات آپ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں پروردگار 14 معصومین کی نالین کے صدقے میں تمام حاجات شریعہ پوری فرمائے مالک بالیان کی عزت رزق بخت مال جان اولاد اور سب سے افضل محبت علی میں اضافہ فرمائے پوری کائنات میں سب سے افضل ترین دعا میں مانگنے لگا ہوں سارے بھائی آمین کہیے پروردگار آپ سب کی نسلوں میں عزاداری کو قائم فرمائے صلوات مل کے ایسی پڑھیے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں میں اگر ایک ترلا منت سماجت کروں تو مان جائیں گے حسین ابن علی کے صدقے میں ہر بھائی 2 قدم آگے ہو جائے کیونکہ پچھلے بھائی تکلیف میں ہیں تنگ ہیں تاکہ وہ بھی وجہ سے بہت بڑھیں 2 حلالی زیادہ ہیں آواز کم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزید پلیت ولید فرید خبیث لعین ملعون پہ لعنت پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت بر محمد وآل محمد صلوات اجازت جناب سیدہ آپ کی نوکریاں قبول و منظور فرمائے عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی کو چاہتا ہے کہ ہم بھی شیعہ مجلس میں جائیں جاتے اس لیے نہیں ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے یہ جانتے نہیں اللہ کا قرآن کیا ہے ان کے مولوی آتے ہیں نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں ان کے ذاکر آتے ہیں وہ سور لگا کے چلے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ چٹا جھوٹ اور بکواس ہے ہم سے بہتر کون جانے کہ قرآن کیا ہے اس لیے کہ کائنات میں صرف ہم وہ ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے سلامت رکھیے جناب سیدہ آپ کو شادمان رکھیں بس اچھی مہربانی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کا لاڈلا خطیب ہوں اگر حلالیوں کی دعا آئے گی مجلس ایسی ہوگی کہ اسرائیل کی ملاقات تک آپ کو مجلس بھول جائے مجھے فون کر دینا میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا مہربانی یہ کرنی ہے اگر جناب کو آواز کی سمجھ آئے میرے ساتھ دینا ہے گفتگو ایسی ہوگی جو عام طور پہ ممبر سے نہیں ملتی اور میری مجلس کے دوران
शबीह दुलजना से लेकर मातम शबीह तक कोई मसला मेरे मसलक के मुतालिक हो, आप उठ के पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सलोनी वालों का मेंबर है, बेटी से रिलेशन करने वालों का नहीं है। कोई सलामत रहिए जनाब सईदा, आपको शादाबाद रखे। बाबा जी आप जो मेरे फ्रेंड वाले भाई हैं, आपकी आवाज मेंबर तक आएगी तो पढ़ने में लुत्फ आएगा। आइए, क्या वाकई शिया नहीं जानते कुरान क्या है? आइए जी, पहले हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान, इसी लफ्ज पे मुझे अंदाजा हो जाना है कि मैं फुतरस पढ़ूं, राहिब पढ़ूं, मिराज पढ़ूं, खैबर पढ़ूं, ये पुरानियां गल्ला सुनी है या नवी नवी बातें सुनी है, मैं इसी मजलिस के बाद चेक करूंगा। आइए सबसे पहले ये पूछते हैं, कुरान ने कुरान को कुरान में क्या कहा है? भाई सलामत रहिए जनाब सईदा, आपको शादाबाद रखे। लोग कहते हैं कि शिया कुरान पढ़ते नहीं, और अगर कोई शिया कुरान पढ़े तो शिया कुरान में बोलते नहीं। मैं पढ़ूंगा, आपने बोल के बताना कि जैसा हम पढ़ते सुनते हैं कायनात में किसी के नसीब नहीं। कुरान ने कुरान को कुरान में क्या कहा? जिसे ये पता है ना कि वो यहां घर छोड़ के क्यों आया है और इस जगह को बैठने को कहते क्या है, वो जरूर बोलेगा। बाकी फिर अपने मुकद्दर का आप मातम करें, मैं जुमला करूं। इरशाद फरमाया, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुम मुबीन। अल्लाह कहता है तुम जिसे कुरान कहते हो ना, अल्लाह ने तो उसका नाम जिक्र रखा है। हाय हाय भाई सलामत रहिए जनाब सईदा, आपको शादाबाद रखे। भाई जो बंदा उर्दू समझ सकता है वो जरूर बोले, जिसे तुम कुरान कहते हो अल्लाह ने उसका नाम कुरान जिक्र। ए अल्लाह के लारैब बेऐब कुरान, ये बता कि क्या कोई और भी पाक जात है जिसे तूने जिक्र कहा है? फरमाया सूरह तारीम, सूरह नंबर 66वां सूरा, और यहीं पे अंदाजा हो जाएगा कि पहाड़ों पे रहते हो या आपकी मार्फत भी पहाड़ों की तरह ऊंची है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रर रसूला। फरमाया जिस मोहम्मद को तुम नबी कहते हो ना, अल्लाह ने तो उसका नाम भी जिक्र रखा है। हाय हाय भाई सलामत रहिए जनाब सईदा, आपके हाथों को सलामत रखिए। सरकार शुक्रिया। अब थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, आपकी आवाज मिंबर पे आएगी, मैं फिर पढ़ता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। हलालियों की दुआ आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। कुरान ने बता दिया जिक्र दो है, कुरान भी जिक्र, नबी भी जिक्र। बाबा जी मेहरबानी, कुरान भी जिक्र। मैं पढ़ के चला जाऊंगा, बाद में आपने चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्गों से पूछना है कि नौकर क्या कह के गया है। कुरान भी जिक्र, सदके जामा, रसूल भी जिक्र। इसके बाद चेक हो जाएगा कि सौखी मजलिस पढ़ा या इल्मी मजलिस हो। कुरान 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 कहता है कुरान भी जिक्र है, रसूल भी जिक्र है। आइए पहले चेक करते हैं कि ये कुरान कैसा जिक्र है। इसके 30 पारे हैं, इसका पहला भी कुरान, इसका दूसरा भी कुरान, इसका 10वां भी कुरान, इसका 20वां भी कुरान, इसका आखिरी भी कुरान। इसी तरह मोहम्मद भी जिक्र है, इसका पहला भी मोहम्मद है। भाई सलामत रहिए जनाब सईदा, आपके हाथों को सलामत रखे। पाक बीवी तो अनुवासा रखेगी मेरे सरकार जी। सरकार शुक्रिया। जो बंदा इल्म लेने वो सर उठाए। मेरे पास पुरानी किसी की सही बातें नहीं है, मैं तो ऐसी मिल से बढ़ता हूँ। मेरा मोहम्मद भी जिक्र, इसका पहला भी मोहम्मद, इसका आखिरी भी मोहम्मद, इसका दरमियानी भी मोहम्मद, ये सारे के सारे मोहम्मद। अब मैं सफर की बात करूंगा, समझना आपने है। ये है आपके आगे डुडियाल, उसके आगे चकवाल, पीछे मंजरा, इधर पिंडी, इधर खारिया लाला मूसा, दीना जेलम। पहला पारा डुडियाल चला जाए वहां पाक, 5वां पारा चकवाल चला जाए वहां पाक, 10वां पारा पिंडी चला जाए वहां पाक, 13वां पारा लाला मूसा चला जाए वहां पाक, 14वां पारा लाहौर चला जाए वहां पाक। कहां खो गए हो? इसी तरह मोहम्मद भी जिक्र है, इसका कोई पारा करबला जाए वहां पाक। सलामत रहिए जनाब सईदा, आपके शादाबाद रखे। जो बंदा इल्म में बोलता है तो कंजूसी ना करे। ज्यादा आवाज आएगी मैं ज्यादा पढ़ूंगा। मिलके उचाना रहा है भाई सलामत रहिए। अगर मुझे यकीन हो गया कि आप ऐसी मेरे से सुनते हैं, ऐसे ही पढ़ के जाऊंगा कि क़यामत तक 2% के नौकर को आप दुआएं देते रहेंगे। मोहम्मद भी जिक्र है, इसका कोई पारा करबला जाए वहां पाक, कोई मशक जाए वहां पाक, कोई काज़मैन जाए वहां पाक, कोई सामर्द जाए वहां पाक, कोई नजफ जाए वहां पाक। यानी जैसे कुरान वखरा पारा, ये पूरा कुरान है। कुरान इकट्ठा हो तो भी पाक है, वखरा वखरा हो जाए तो भी पाक है। इसी तरह सारे मोहम्मद चादर के नीचे आ जाए तो भी पाक है।
हाय हाय बस समझ करके जावा। एक बात सुन लीजिए, इसके बाद मैं महिला पढ़ता हूं, पहले कल सुन लीजिए। तैयार? सिर्फ मुझे एक डर है, वो पहले बता दूं, आपने थक जाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं घंटे में इतना पढ़ता हूं जितना दूसरे मौलवी अशरे में पढ़ते हैं, तो मैं साह नहीं लेने देना। बार बार बोलोगे जितनी दुआ ज्यादा है कि उतना मैं पढ़ूंगा, वरना मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे आखिरी हलाली तक, अव्वल से आखिरी तक, सैयद आदम से लेकर आखिरी भाई तक, मुझे हर हलाली की तईद और दुआ चाहिए। अगर मेरा जुमला सही हो फिर आपने बोलना है, सारे मोहम्मद सटके जवाने इकट्ठे हो जाए तो भी पाक, वखरे वखरे हो जाए तो भी पाक, या अली मदद, मेरे मौला मेरी मदद करना ताकि हर हलाली समझे। कुरान इकट्ठा हो तो भी पाक, वखरा वखरा हो तो भी पाक, सारे मोहम्मद इकट्ठे हो तो भी पाक, वखरे हो तो भी पाक। यही वजह थी हसन का तीरों वाला जनाजा हुसैन ने अलग दफन करके कायनात को बता दिया, हसन मोहम्मद के पास रहे तब भी पाक है, अलहदा रहे तब भी पाक है। भाई सत्य, भाई सुभान अल्लाह, मालिक आपको सलामत रखे। मेरी पूरी कोशिश आपकी जवानी सलामत रखे मेरे भाई। अब मुझे आधा यकीन हो गया जी, अरे पूरा नहीं हुआ, आधा हो गया जी कि आप सुनने के मूड में बैठे हैं। मेरे भाइयों देखिए, अब वक्त का तकाजा है कि आगे बढ़ना है। फुतरस कौन था आपको पता है, राहिब कौन था आपको पता है, मिराज में पर्दे के पीछे कौन था। अब हालात का तकाजा यह है कि आगे बढ़ा जाए, और आगे तब बढ़ सकते हैं जब आपकी दुआ साथ होगी। अच्छा अब जुमला सुनिए, जरा सोच के बताइए ध्यान से। सफर का जुमला है, इसके बाद कसीदा पढ़ता हूं। ये क्या है कि कुरान पाक जी, मेहरबानी। किसने नाज़िल किया? अल्लाह आपको सलामत रखे। किस पर नाज़िल हुआ? मालिक आपको सलामत रखे। कौन कुरान लेके आया? अब मैं कुरान पकड़ के एक लफ्ज कहूंगा, आपने मुझे पकड़ना है। तो यार, कुरान अल्लाह ने भेजा, मोहम्मद पर भेजा, हजरत जिब्रील रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान लेके आए। बाबा जी गलती हो गई बाबा जी, शादी गलती हो गई है। फिर मेरी बात सुनिए, 7 जगह मैंने अशरा मुहर्रम पढ़ा है, 7 जगह, और 11 से लेके आज तक हर रोज 3-3, 4 मैसे। अभी आपके पास डुडियाल मरकज में जाऊंगा, इसके बाद खेवड़ा जाऊंगा। रोज मैसे हैं तो बंदा थक जाता है, इंसान है, अगर गलती माफ कर दो, माफ कर दो। क्या कहना चाहिए था? तो मैंने क्या कह दिया? दीवारों पे लिखता है काफिर काफिर शिया काफिर, कभी अपना नाक अपने गिरेबान में डाल और अपनी गंदी स्मेल सूंघ के मर क्यों नहीं जाता? जब कुरान लाने वाला रज़ी अल्लाह नहीं, कुरान बचाने वाला रज़ी अल्लाह कैसे होना है? सलामत रहिए जनाब सैयदा, आपको साधुवाद रखेगी। जो हाथ जिक्र शबीर में उठाएगी किसी हरामी के मोहताज ना हो। मुझे ऊंचा नारा है जनाब सैयदा, आपको सलामत रखे, पाक बीवी को वास्ता रखे। अच्छा अब इसका मतलब है 70% यकीन बढ़ गया जी, पीछे नहीं रहेगा जी। अब 30 को पूरा करते हैं। जरा सोच के बताइए मेरे मोहतरम सामने, इसके बाद मैंने महसूस करनी है, पहले मैं यकीन पूरा करूं, 100 का 100 हो जाए। ये बताइए मेरे मोहतरम सामने, अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे ये बताइए कि चूंकि ये पाक मिंबर है, बताइए अदब का मिंबर है, पर्दे और हया का मिंबर है, लोगों को चादरें देने वाला मिंबर है, यहाँ कहीं कहीं मेरी माएँ बहनें भी बैठी होंगी, इसलिए मैं इशारा करूंगा, समझना आपका काम है। तहजीब और तमीज का मिंबर है, मैं खोलूंगा नहीं बात को, सिर्फ आपको समझना है हाँ या ना। क्या कुरान दोपहर के 12 बजे पाक है? ठीक। क्या कुरान रात के 12 बजे भी पाक है? तो साढ़े ठीक क्यों पहले उसे मान। अब 12 से कुरान भी वो होगा जो दिन के 12 बजे भी पाक हो, जो रात के 12 बजे भी पाक हो। हाय हाय भाई सलामत रहिए जनाब सैयदा, आपको शानदार रखे। पाक बीवी तो यार ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है, मौला की कसम ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है भाई, सलामत है।
सदके अली अमीर अल-मोमिनीन वसीय मोहम्मद अली 110 अमीर अल-मोमिनीन 478 वसी 106 मोहम्मद 92 नारा अच्छा मेरा ख्याल है एक ही मैं जब से 92 जो बगैर खालिक बनो नहीं बाबा जी मैं अब एक मिनट मेरा ख्याल है मुझे पूरी बात नहीं लेकिन मुझे अंदाजा ये है कि बाबा जी इल्म अदा कुछ कहते हैं नमाज बिस्मिल्लाह से शुरू होती है कि कुरान और हुक्म यह है कि जब शादी हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी ज़ौजा के पास जाओ और जब खाना खाओ तो पहले बिस्मिल्लाह के हुरूफ हैं 19 कितने आइए जरा गिनते हैं जी 19 कैसे बनता है मोहम्मद मीम है मीम दाग 4 कितने हो गए अली आइन नाम ये 3 4 और 3 मेहरबानी फातिमा फे अलिफ तो है मीम है 5 7 5 हे सीन नून हसन के 3 12 तक है हे सीन ये नून 15 और 4 और यही है पंचम पाक का नाम पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब जो पंचम से लड़के ज़ौजा के पास जाए औलाद में जाए जो बिस्मिल्लाह के बगैर टुक्कर खाए वो नमक हराम है। तो सबके नवाजी मेहरबानी सलामत रहिए इसलिए मुझे पढ़ने दीजिए अगर आप उतर के बोलेंगे तो फिर मौजूद कहीं से नहीं निकलेगा। भाई दिन को भी कुरान और रात को भी लो जी सारे भाई देखिए क्या जनाब को दरवाजे नजर आ रहे हैं पीछे भी दरवाजे नजर आ रहे हैं ये भी दरवाजा है। अब आइए जरा चेक करते हैं कुरान साहब पर रख लूं ताकि सारे शिया सुन्नी मुतमिन हो जाएं। आइए चेक करते हैं कि वो कौन है जो कुरान की तरह दिन को भी पाक है रात को भी पाक है। तेरे घर की 80 किताबें ये कैमरा लगा है मेरा माइक भी ऊपर मुंह है 80 किताबों में लिखा हुआ है सरकार को वही हुई हबीब जी मालिक फरमाया मस्जिद मेरा घर है यहाँ हर बंदा हर बीबी हर हालत में नहीं आ सकता हर बंदा हर बीबी हर बंदा हर बीबी हर बंदा हर बीबी हर हालत में नहीं आ सकता। सबके दरवाजे बंद कर दे ALL सबके दरवाजे शादी सबके कुरान की कसमें सबके दरवाजे बंद कर दे। ये मेरा तैयब तारीख है फकत 2 दरवाजे खुलेंगे जो 24 घंटे पाक है एक नबी का खुलेगा दूसरा अली का भाई सलामत रहिए जनाब सईदा आपके सामने बात रखे मिलकर चलना भाई जनाब सईदा आपको शादोबाद रखे। कहते हैं शिया वंश को जाने का क्या फायदा ना इनके पास शक्ल है ना अकल है ना ये कुरान पढ़ते हैं आके चेक कर और ये भी देख कि वो कौन सा लफ्ज है जिससे निकाह टूट रहा है। सर भाई अब मेरा जी चाहता है कि मैं एक मार्फत का मोती दूं अभी मैं कभी दाएं गया कभी बाएं गया और आहो है ना अब एक मार्फत का मोती हो जाए। मेरे पहले नाज़िल कुरान मौला से पूछा गया यार नहीं कुरान को मैं जब साल उठाइए क्योंकि मैं वुजू करके आता हूँ मेंबर में इसलिए मुझे कोई गुनाह नहीं हो रहा मैं टच कर रहा हूँ ठीक है वुजू करके टच करना सवाब है। तो मैं कहता है याद नहीं कुरान को ऊपर से देख के पढ़ना ज्यादा सवाब है। भाईजान आपकी वजह से मजमा डिस्टर्ब हो रहा है भाई थोड़े थोड़े से मेहरबानी कीजिए क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाता है तो नबी फरमाता है अगर बेगौरी हो तो अल्लाह और मलाइका लानत करते हैं इसलिए थोड़ा सा आपकी मेहरबानी जरा अपने नौकरी पर देखिए जी सलामत रहिए याली मार्फत का मोती ना हुआ यहां से पकड़ के मुझे मिंबर से गिरा दो। याली कुरान को जुबानी पढ़ना ज्यादा सवाब है या ऊपर से देख के जुमला आधा मैं पढ़ूंगा आधा आप पूरा करेंगे। अली फरमाते हैं ऊपर से देख के पढ़ना डबल सवाब है जुबान पढ़ के सवाब लेगी और आंख सलामत रही। शादी सैयद अगर ये मलांग मेरे सामने आए मैं इसकी जुत्ती जो हूं उसने अगली बात पूछी और आपके कलेजे ठर जाएंगे गुलाब के फूल बन जाएंगे। कहता है यार ये तो हम हैं गुनाहगार कि हमारे लिए हुक्म यह है कि जब कुरान पढ़े तो ऊपर से देख के पढ़े। सरकार गुस्ताखी माँ का सवाल पूछो का सरकार जब हुज्जत कुरान पढ़ती है जब मासूम कुरान पढ़ता है जब नातिक सामिन को पढ़ता है तो मंजर क्या होता है कंडीशन क्या होती है सिचुएशन क्या होती है। सरकार ने सुन
جب حجت قرآن پڑھے تو منظر یہ ہوتا ہے الامام یتلوہ والقرآن یزورہ، امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن امام کی زیارت کرتا ہے۔ کوئی سلامت رہیے جناب سیدہ طاہرہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسل میں عزاداری کا سلسلہ قائم رکھے، آخری پابندی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ میرے محترم سامعین مجھے یہ بتائیے، اگر تھوڑی سی بات مشکل ہو جائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک قرآن، میرا موضوع قرآن ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، موضوع قرآن، لفظ قرآن، ابھی میں نے آیتیں نہیں پڑھی، 2 پڑھی ہے، لفظ قرآن پہ بحث بھی توجہ۔ ایک علم ہے علم جغرافیہ، پہاڑ والوں جغرافیہ یعنی زمینی علم، یہ بتاتا ہے کہ کس مٹی میں کیا تاثیر ہے۔ تو سر 1 منٹ سا لینا، قصیدہ اتنا بڑا آپ کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے گی۔ علم جغرافیہ بتاتا ہے کہ ایک علاقہ ہے کنعان، بابا جی یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ بیٹا پتر میل وہ بڑا سونا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو خوبصورت ہو نہ ہو الگ مسئلہ ہے، جو بیٹا پیدا ہوگا رج کے سونا ہوگا۔ ادھے بندے ہوں کر ہیں باقی چپ ہے نا، بتاؤں کیوں؟ کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت یوسف پیدا ہوئے تھے۔ بھائی سلامت رہیے، بھائی سلامت رہیے۔ میں آپ کو کہتا ہوں واہ واہ، علم پہ بولنے والے واہ واہ، ورنہ لوگ وہی کسی بھی نہیں سے پڑھتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، اور ادھر آپ کہتے ہیں میں سبق سنانا ہے، بھائی یہ گھر پر چھوڑ کے تیرا سبق سننے ہے، یہ سبق دینے کا ممبر ہے، یہ سیدوں کا ممبر ہے، یہ سلونی والوں کا ممبر ہے، یہاں کھڑا ہونا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، سمجھائیے۔ کنعان خوبصورت نہیں، اچھا یہ پہلے لفظ درست کیجئے، صدقہ حسین کی جتی کا ایک لفظ درست کیجئے، یوسف بھی غلط، یوسف بھی غلط، یوسف بالضم سین کی پیش کے ساتھ، اصل لفظ ہے یو، سلامت رہیے، لفظ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے جو بندہ پیدا ہوتا ہے یہاں بڑا سونا ہوتا ہے۔ ایک علاقہ ہے مصر، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مصر، مصر سواد کے سون کے ساتھ مصر۔ بابا جی قرآن میرا موضوع ہے، اس مٹی میں تاثیر یہ ہے کہ یہاں جو قاری پیدا ہوتا ہے نا بڑا سریلا ہوتا ہے، ہاں کچھ رحان شاہی، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو سننے والا وجد میں آ جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، یعنی کنعان سونے اور مصری سریلے۔ ادھا جملہ میں نے بولنا ہے اور پھر چیک کروں گا واقعی پہاڑ پہ رہتے ہو یا واقعی پہاڑ پہ رہتے ہو۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ادھر سے حسین لوگوں کا قافلہ چلا مکہ حج کے لیے، ادھر سے سریلے قاریوں کا قافلہ چلا مکہ حج کے لیے، اور غلاف کعبہ پکڑ کے حسن قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہائے ہائے، وہ سلامت رہیے جناب سیدنا، آپ کو شاد و باد رکھے، وہ ہاتھ سلامت رہے جو علم پہ بولتے ہیں، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی آپ کی کیا بات ہے، مولا حسن قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے حسین لوگوں نے دیکھا ہے اسی کی حسن تو اسے کہتے ہیں۔ بابا جی آپ کا نام نہ دہرائیے۔ ضیاء شاہ جی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پنڈال میں جتنے شیعہ ہیں اتنے سنی آتے ہیں، اب میرے سنی بھائیوں یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔ اور کتنے سونے تھے مولا حسن خان نادر صاحب، وزیر اعظم کی کرسی پہ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بازار سے مولا علی مولا حسن کی انگلی پکڑ کے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر نے دیکھا، وزیر اعظم والی کرسی چھوڑی، بھاگتے ہوئے گئے گلی میں مولا حسن کو اٹھایا، ایس تو چنگی مثال بھی کو نہیں، ایس تو چنگی مثال بھی کو نہیں، گلی سے مولا حسن کو اٹھایا، پاؤں چومے ہاتھ چومے، یہاں بٹھایا، میرے مولا علی رکے، میرا پتر کتنے گیا ہے، یوں مڑ کے دیکھا، حضرت ابوبکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی اتنی سخت آنکھوں سے نہ دیکھیے، میں اسے آپ کا پتر سمجھ کے نہیں محمد کی شبیہ سمجھ کے۔ بھائی سلامت رہیے جناب سیدنا، آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بات سب کو سلامت رکھے، پاک میں بھی تو شانتوں بات رکھے جی، میں راضی کر دی، اور میری چوکڑ کر رہی مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی سلامت رہیے، بھائی سلامت رہیے۔ اس کا مطلب ہے ہو بہو محمد کو حسن کہتے ہیں، میرے مولا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرے محسوس قانون تقریباً کچھ 6 فٹ میرا قد ہے، کوئی 1-2 انچ اوپر نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور 3 فٹ کا یہ بازو ہے یہ، اور میرا خیال ہے اتنا اونچا اونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بڑی تے دیکھتا نہیں، اندازہ بتا سکتا ہوں، میں اپنا دماغ لا کے میں اپنے ووٹ تھوڑی جوڑ دیکھتا ہوں، اندازہ بتا رہا ہوں کتنا ہوتا ہے جی، اتنا۔ کھڑے کھڑے اونٹ سے اترنا مرد کے لیے بھی آسان کام
जेड़ा बंदा अपने मुकद्दर विलायत अली की तरह जाग रहा है ना, वो जुमला जाहिर नहीं करेगा जो सोया है, सोए पे शरीक भी लागू नहीं, मैं गिला करने वाला कौन हूं। बस जूं ही सोनों ने देखा हसन को, सुरीलों ने सुना हसन को, ऊंट बिठाना भूल गए और काबे में मुंह के बल गिरते रहे। भाई सबके जवाब मैं काबे में थक जाइए, आप थके हैं, आप थक गए हैं, काबे में मुंह के बल गिरते रहे, काबे में मुंह के बल गिरते रहे। मुझे जिया शाह ने कहा है, हमारे पास सुन्नी भी है, और मेरा ऐलान सुन लीजिए, इस जुमले पे सुन्नी भाई ना बोले मुझे कोई अफसोस नहीं, नया नया शिया चुप रहे मुझे कोई अफसोस नहीं, दो बंदे ना बोले मुझे कब्र तक अफसोस होगा। नंबर 1 हस्बी नस्बी सैयद ना बोला मुझे दुख होगा। नंबर 2 जिसकी अम्मा शिया है वो ना बोला मुझे अफसोस होगा। नवा शिया चुप रहे कोई परवाह नहीं, सुन्नी भाई ना बोले सुनने पे कोई परवाह नहीं। अब दोनों गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, इधर से हसीन उठे इधर से सुरीले उठे, एक दूसरे के गले में बाहें डाल के कहते हैं, इसी काबे के रब की कसम ऐसा लगता है इंसान कुरान नहीं पढ़ रहा, रहमान कुरान पढ़ रहा। मेरे भाई साउंड वाले भाई, आपका साउंड बड़ा बेहतरीन है, हमारा पढ़ पढ़ के बेड़ा कर हुआ है। आवाज बैठा हुआ, अगर आपने मेहरबानी करनी है, किसी बात पर कम नहीं करना, मैं इंशाल्लाह इसका ख्याल रखूंगा। इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, 1 2 और ये 3, इसका ख्याल बड़ा, लेकिन आप मेहरबानी कीजिए। जी सर, मैंने 2 कहानी बना लिया, एक मौला अली और एक मौला। एक वादा मेरे साथ कीजिए, मैं अभी फिलहाल पढ़ूंगा, आंखों में कंट्रोल रखेंगे। 2 मैंने इमाम बताए, मौला अली और मौला हसन। अगला किसका नंबर है? और ये वो कारी है जो बगैर धड़ के पढ़ता है। आंखों में कंट्रोल हो, फदाइल पढ़ूंगा, फदाइल पढ़ूंगा अभी, मसाइल बाद में। सर उठाइए, मुझे बताइए क्या ईसाई आमतौर पे कसम उठाते हैं? सारे बोलिए, नहीं उठाते। ईसाई पादरी बड़ा बड़ा आलिम अपनी चर्च पे बालकनी में, जैसे ये आपका इमाम है ना, यह खड़ा था, यूं देखना टहल रहा था, नीचे से सदाब का काफिला गुजरा, उसने देखा कोई फदाइल है, उसने देखा एक कारी है बगैर रगों के, बगैर गले के, कोई फदाइल पढ़ रहा, मेरा साथ देना, कुरान पढ़ रहा है, अपना आप भूल गया कि मैं ईसाई हूं, मैं कौन हूं। फौरन कहता है वल्ला हाज़ा मसीहुन व बिहक़्क़ि नाज़रा, कहता है अल्लाह की कसम, कमारी मरियम की पाक दामनी की कसम, यही ईसा है, यही मसीह है, यही ईसा है, यही मसीह है, यही ईसा है, यही तेरे हाथ में पड़े, यही ईसा है, यही मसीह है, यही ईसा है, यही मसीह है। जितने मेरे सुन्नी भाई हैं सारे को उठाए, मोबाइल रिकॉर्ड करे, मेरी बात गलत हो सुनी आपकी सारे मेरी, कहता है यही ईसा है, यही मसीह है। बुखारी शरीफ की हदीस पेश करने लगा हो, यही ईसा है, यही मसीह है। जब उसे कहना मौला हुसैन को यही ईसा है, यही मसीह है, मौला सज्जाद तड़ियों समेत पीछे पलटे, कब मां खुलता तुमने कैसे कह दिया कि मेरा बाबा ईसा जैसा है? चुप कर, कहां कनीज का बेटा, कहां ज़हरा का बेटा। हाय भाई सलामत रहिए, जनाब सईद आपके हाथों को सलामत रखिए, मेरा साथ देना, मैं फदाइल में हूं, मैं फदाइल में हूं। ये तूने क्या कह दिया? कह भाई, अगर कोई आप समझे कि यह गलत नहीं है, इसका माना ये नहीं कि आप चुप कर जाए, आप दुआ देंगे तो आइंदा ऐसी बातें होगी। वरना मैं भी मेरी खुदरत पढ़ता हूँ, राहे पढ़ता हूँ, उदील पढ़ता हूँ, जो आपको आती है, मैं भी पढ़ता हूँ कि मौलाना दरवाजा यूं फेंक दिया था। अब दौर का तकादा यह है कि आगे बढ़ा जाए। तवज्जो सरकार, मैं तू कैसे कह सकता है मेरे बाबा को कि ये ईसा जैसा है? कहते हैं कहती ये तेरा बाबा है? हाँ, मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, मैं तौरात का आलिम हूं, मैं आम पादरी नहीं हूं, मैं इंजील का प्रोफेसर हूं, मैं ज़बूर का कारी हूं। और कहती मैंने तुम्हारा कुरान भी पढ़ा हुआ है, मैंने तुम्हारा कुरान भी। इमाम फरमाते हैं कुरान पढ़ा है, अगर लगे कि बात नहीं है आप समझें, लेकिन कुरान के मुताबिक है, फिर दुआ इतनी चाहिए कि नौकर का पढ़ना छोटा हो जाए, हलालियों की दुआ बड़ी हो जाए। इमाम फरमाते हैं कुरान पढ़ने के बावजूद कह रहा है कि मेरा बाबा ईसा जैसा। बता तू कुरान में जानता क्या कौन था ईसा? कहता है कहती मैं बताओ, तुम्हारा कुरान कहता है कि ईसा वो था जो पाँव की याली मदद ईसा वो था जो पाँव की ठोकर से
जनाब सईदा आपको सलामत रखे, मौला आपके चेहरों पे तरोताजगी को हमेशा बाकी रखे। नुक्कड़ वाले भाई तक मिलकर ऊंचा नारा है। मैं अभी पढ़ने के मूड में हूं, लेकिन मुझे शक पै गया जी, मैं थक गया। क्या जनाब को नौकर का ये तरीका पसंद आ रहा है? कोई सलामत रहिए। हैरान का अटूट है, दुआ ज्यादा देनी है, मेहरबानी। मेरे मुंह की तरफ गौर से नहीं देखना, बात की तरफ देखना है। आप दुआ देंगे फिर बात आगे बढ़ेगी। तो जरा सारे मुझे बताइए, चूंकि मैं सिर्फ जाकिर नहीं हूं, मैं शियों का तालिब इल्म भी। मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम सामने, अगर बंदा किसी मरे हुए बंदे को हाथ लगाए क्या होता है? दूसरे मसला मैयत। शर्त यह है भाइयों, नौजवानों, बेटों, छोटे बच्चों, शर्त यह है कि अगर उसे गुस्ल नहीं किया गया तो ये मैयत नहा धोआ के पाइए, फिर टच करके गुस्ल वाजिब। अगर उसे नहलाया नहीं है तो जो हाथ लगाएगा उस पर नहाना वाजिब। और ये भी सुन लें, हमें लोग सुन करके पूछते हैं जी फलां गुस्ल का तरीका क्या है, फलां गुस्ल का तरीका क्या है। तो याद रखिए, गुस्ल का तरीका एक ही होता है, नियत में फर्क होता है। फिक्र का मसला हो गया, आप आगे बढ़िए। सही कहा आपने कि जब बंदा मरे हुए बंदे को हाथ लगाए तो गुस्ल वाजिब होता है। शाह जी, बाबा जी, यही काम आपके मौला हुसैन ने दुनिया को बताया था। ओए हरामजादे मुल्लाओ, तुम किस मुंह से कहते हो कि मेरे नाना मोहम्मद जैसे हो? याद रखो, मुल्ला कट जाए तो नजफुल-ऐन होता है, हुसैन कट भी जाए तो अल्लाह का कुरान होता है। बड़े सलामत रहिए। जनाब सईदा ताहिर आपको शाबाद रखे, पाक बीबी को निवास रखे जी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैंने जुमला पढ़ना है, मेरा साथ दीजिए। सारे भाई बताइए, तैयार है? अरे नौजवानों, यहां से जुमला निकला है, बड़ी पागल कौम है शियों की, जिंदा का मातम करते हैं। भाई हुसैन तो नौके निगाह पर कुरान पढ़ रहा है, हुसैन तो जिंदा है, शहीद जिंदा होता है, तुम जिंदा का मातम करते हो। मेरी तरफ से जवाब ये देना है कि जनाब, जिंदा का मातम करना हराम है, जिंदा को दफन करना जायज है। जिंदा के बच्चों को यतीम कहना जायज है, जिंदा की बीवी को बेवा कहना जायज है। इसका मतलब गल कुछ हो रहे, वलाकिन ला तशउरून, तुम नहीं जानते कि वो जिंदा कैसे है। मौलवी कहता है जानते हैं, कुरान कहता नहीं जानते। सच्चा कौन? आइए जी, आपने कहा पढ़, जो अभी तक पढ़ा इतना था, जो अपना लगा हूं इतना है। अगर दुआ आएगी बात आगे बढ़ेगी। सारे भाई नाम नहीं लेना, मुझे बताइए मौलवी डीजल को जानते हैं जी? नाम नहीं लेना। वो रोटियों वाला कोना लेके आता ना, पार्लियामेंट के सामने कह रहा था शहीद कौन? तवज्जो, अगर तो ये जुमला पहुंच गया, इसके बाद फिर वो मजलिस पढ़ूंगा जो मैं पढ़ने आया। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर वो पढ़ूंगा। और अगर ये जुमला जाया हो गया, फिर मैं समझूंगा कि नहीं, मैंने गलत जगह पे इल्म की मंडी से जाई। तवज्जो, मेरा मान न टूटे, दुआ आनी चाहिए अगर समझ आएगी। मौलवी डीजल बाबा जी कहता है, अमेरिका अगर किसी कुत्ते को भी मारे तो हम उसे शहीद कहेंगे। टेलीविजन में मौजूद है, नेट पे मौजूद है। बाबा जी क्या कहा? मुझे मेहरबानी तय भी हो गई, बात लोग कह रहे थे, बिल्कुल कहा था। इतनी बड़ी टैंकी समेत मौलवी डीजल कहता है, अगर अमेरिका किसी कुत्ते को भी मारे तो हम उसे शहीद कहेंगे। सारे कुरान आके कह रहा हूं, उस हलाली की पाक अम्मा को भी सलाम जो गरीब का जुमला समझ के बोले। मौलवी कहता है, अमेरिका किसी कुत्ते को भी मारे तो हम उसे शहीद कहेंगे। अच्छा तो मौलवी कब तक कुत्तों को शहीद कहेगा? सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। मौला आपकी जिंदगी की बात सुनाए जी, सदके जवाब, कब तक कुत्तों को? नौज बिल्लाह, मौलवी कहता कुत्ता शहीद। आगे बढ़िए। अमेरिका कहता है, ये धूप है इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि हम जो जाकर है ना, आपको पता है तो सही सारा पैदा कर किया पहले दे देखिए, हम बड़े बड़ा नफीस हो जाता है ना गाड़ियों में, एसियों में, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूं। मैं ये नहीं चाह रहा कि एक जो चुके में मेरा उठा रख दिए, तो माहौल खराब होगा। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, आपने दुआ करनी है। तो जो अमेरिका कहता है, जो हमारे फौजी अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, जो मरते वो शहीद। कितने हो गए? हिंदुस्तान रात को कहता है खबरों में, कल बॉर्डर पे अजीब सी दुर्घटना हुई, हमारे 40 बंदे मारे गए, वो शहीद। कितने हो गए? मेहरबानी। तालिबान कहता है सुन्नियों की मस्जिद में शियों की इमामबारगाह में आता है, खुद को बम से फोड़ता है, शिया भी मरता है, सुन्नी भी मरते हैं, और वो हरामजादे कहते हैं जो हमने भेजा ये शहीद था। कितने हो गए? और 5वां शहीद जो वाकई शहीद है वो है पाक फौज, वो है हमारी पाक आर्मी, जो हमारी हिफाजत के लिए मरते हैं, वो सचमुच शहीद है।
तोहफा दिया। एक बंदा मुझे मस्कत से फोन करके कहता है मौलवी अब बाबा जी शाह जी लाइट गई से ना, लाइट गई से ना, जब मैं वजू कर रहा था लाइट गई थी ना, आपसे पानी में जख्म हुआ तो वजू किया ना, कुड़ी में पानी नहीं आता। वो मुझे कहता है यार वो पाकिस्तानियों वो तुम्हारी लाइट का निजाम नाकिस, वो तुम्हारा पेट्रोल नाकिस, महंगाई नाकिस, वो तुम्हारा पीने का पानी नाकिस, वो तुम्हारी गलियां नाकिस, वो तुम्हारी नालियां नाकिस, वो तुम्हारी हुकूमत नाकिस, वो पाकिस्तानियों वो तुम्हारा सब कुछ नाकिस है। एक गल की समझ नहीं आती। मैंने कहा कौन सी? कहता यार तुम्हारी फौज बड़ी कमाल है, कोई और तो और हिंदुस्तान जैसा अजली अबदी दुश्मन भी मानता है कि पाक आर्मी जैसी कोई आर्मी नहीं। इसकी वजह क्या है? हर चीज नाकिस है, आर्मी अच्छी है। कुरान आपके सामने करके जुमला कहूंगा। मैंने कहा इको ही गल है, वजह एक ही है, पूरी कायनात में मेरी आर्मी सबसे अफजल इसलिए है क्योंकि सिर्फ मेरी फौज है जिसके पास निशाने हैदर है। कोई सलामत रहिए, जनाब सैयद आपको शादाबाद रखे, पाक बीबी बाबा जी को व्यवस्था रखे जी, मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा मुझे ये बताइए जी, बच्चे भी बोले मेरे साथ, बेटा मेरे साथ बोलो, बेटा मुझे बताओ भाई जान, आप भी बताइए कुरान क्या कहता है? झूठे पे अल्लाह की, इसका मतलब ये सारे जानते हैं ना, काज़ी भी सारे जानते हैं। एक बार फिर बोलिए, झूठे पे अल्लाह की। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले जो पढ़ा था वो मेरा था, जो अब पढ़ रहा हूँ ये मेरा नहीं है। ये शहीद मिलत जाफिया अल्लामा नासिर बास का जुमला है, नाम लेकर पढ़ूंगा, आप दाद दे ना दे आपकी मर्जी, देंगे तो विलायत अली का नूर बन के उनकी कब्र में जाएगा। अल्लामा फरमाते थे मुझसे किसी ने पूछा कि यार एक ही चक्कर है कि जब बंदा मर जाता है फिर उसे निशाने अदर मिलता है, इस जिंदगी में निशाने अदर क्यों नहीं मिलता? 5 बंदे बोलो मैं राजियां कि मेरा फरमाते थे इसलिए कि जिस बंदे को निशाने हैदर मिल जाए अगर वो अगली जंग में भाग जाए ये हैदर की तौहीन है। जनाब सईद आपको शादाबाद रखे, पाक बीबी तो व्यवस्था रखे थी, पूरी पूरी पूरे नाम थी, सारे नुकरे से मिलकर ऊंचा नारा है जी सलामत रहिए। बाबा जी आप चाहिए, बाबा जी आप चाहिए। लो जी मैंने कितने शहीद गिनाए थे आपके सामने? पहले 4 गलत और 5 वो ठीक थी। अब मैं इस पाकीज़ा मट्टी पे जो इतनी बुलंद है कि अल्लाह ने रखा ही पहाड़ के ऊपर है, मैं अरबी पढ़ूंगा, तर्जमा करूं तो ये आपकी मट्टी की तौहीन है। मैं तर्जमा नहीं करूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ूंगा, क्योंकि और इलाका होता मैं तर्जमा करता। इतने जय्यद चेहरे तशरीफ फरमा है, नमाजी हजरात तशरीफ फरमा है, मालिक आपको सलामत रखे। मैं जुमला कहने लगा हूं, मेरा मान न टूटे, मैं अरबी पढ़ूंगा, तर्जमा नहीं करूंगा। मौलवी कहता है कुत्ता शहीद, अमेरिका कहता है हमारा शहीद, तालिबान कहता है हमारा शहीद, इंडिया कहता है हमारा शहीद, पाक आर्मी कहती है हमारा शहीद, जबकि सूरज वो कहता है मेरा शहीद। आप बताइए ए अल्लाह के रसूल, आपकी निगाह में शहीद कौन है? मैं सुनो, अल्लाह माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। कोई सलामत नहीं है, कोई सलामत नहीं। जनाब शहीद आपको शादाबाद रखे, मिलके मैं हाले पढ़न के मूड से आया, अभी तक जो पढ़ा ये इतना था, पढ़ा तो तैयार हो। रसूल से पूछा, सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। और कोई सुन्नी भाई ये ना समझे कि शिया हदीस है, आपके घर की 50 किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, जिनमें से एक सुन लीजिए, दुर्रे मंसूर, जुनाबे मुअद्दद, अर्जा मुतालिब, सवाए के मोहल्ला, ये पुराने दौर थे, बड़केड़ा खब्बा पासा 17वीं में, ये अब दौर नहीं रहा, अब नेट मौजूद है, आप देख सकते हैं। तवज्जो, आइए अब कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता कि मुल्ला रोज कहता है फलां जिंदा फलां मुर्दा, तू बता तेरे नजदीक जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? 8वां सूरा, सूरा मुबारक अल अनफाल, आयत का निशान 24, 24वीं आयत सूरह अनफाल, 24वीं आयत सूरह अनफाल, 24वीं आयत। बंदा शिया हो चुप रहे, एक बार घर जाके शीशा देखे, नाम का शिया है या अंदर से भी शिया है? आप कुरान से पूछते हैं जिंदा कौन, मुर्दा कौन? इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलिहि इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह कहता है आओ मैं बताऊं, जो मोहम्मद के बुलाने पे आए वो जिंदा है, जो भाग जाए वो मुर्दा है।
शहीद ताहिर आपको शादोबाद रखे। वो आखिर मुकदमे जनाब शहीद आपको शादोबाद रखे। बस करिए, आगे चले, आगे चले भाई, आपकी इजाजत है, आगे चले। मेरे साथ मिलो जी। जी शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आपके पाँव का सदका था। कहता थोड़ा और पढ़, क्या कहता छोड़ दो, अभी पढ़ू थोड़ा सा। अच्छा जी मुझे बता दे बाबा जी, मैं तो शुक्र करता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ मुझे को कहे बस का, क्योंकि मैं जिथे जाना लोग उन्होंने बड़ी इच्छा थी। अच्छा 12-26 हुए हैं, तो कब तक भाई को मैं कर दूँ? पौने तक दे दूँ, यानी 10-15 मिनट और पढ़ लूँ। मालिक आपको सलामत रखे। मैं तो शुक्र पीता है। ना ना बाबा जी, मैं कुरान की कसम खुश होता हूँ। पता क्यों? पता क्यों भाई जी? इसलिए कि जब हम आते हैं ना हमारा काम हो जाता है। अब तो आपकी मर्जी है, हम तो आ गए। फिर सलामत रहिए। जनाब शहीद आपको शादोबाद रखे। मेरे साथ मिलिए, सारे मिलिए। जो रसूल के बुलाने पे आए वो जिंदा, भाई आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? और जो भाग जाए वो मुर्दा है, भावे पहाड़ते पे टपदा फिरे। वो क्या है जी? मुर्दा है। एक मरतबा फिर तर्जुमा दोहराइए और मैं जल्दी अपने भाई को विवर दूं। जो रसूल के बुलावे पे आए वो जिंदा, और जो भाग जाए, अब अपने नौकर का मुसाफिर समझ के, तालिब इल्म समझ के, अपनी जूतियों का नौकर समझ के मेरा साथ दीजिए। नमाज जिंदा पे वाजिब है कि मुर्दा पे? जिंदा पे। और जिंदा कौन है? जो रसूल के बुलाने पे। अद्धा जुमला पढ़ूंगा और आपको चेक करूंगा कि कौन कितनी मार्फत के पानी में बैठा है। एक नमाजी नहीं, नमाजी। भाई नमाजी नहीं कौन? एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, इधर से रसूल ने बुलाया, ओ भाई रसूल बुलाते हैं वो और तेज, और तेज, और तेज। कब्र की दीवारों तक तो भूल जाओ, टेलीफोन कर देना, मैं मिंबर करना छोड़ दूंगा। अभी तक मैंने पढ़ा है, क्या किया है? अब मैंने पढ़ना नहीं, कुछ करना है। भाई फिर सुनिए नौजवानों, फिर सुनिए। अभी तक मैंने पढ़ा है, अब मैंने कुछ करना है। तैयार? नमाज खत्म हुई, आया 5 बंदे बोले बना दिया। जी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं आप नहीं। जी फरमाया कुछ नहीं। शाह जी आपने आवाज तो दी थी, आपने बुलाया था ना? कहाँ? काम तब था जब बुलाया है। जो बंदे 5वीं जमात तक स्कूल में है ना, वो ना बोले मुझे अफसोस होगा, और 5 से नीचे 2-3 वाला तो ना भी ना बोले, मुझे परवाह ही नहीं है। कम से कम 5 वाला बोले मुझे अफसोस होगा। कहता है सरकार आपने आवाज दी, आप देख रहे थे ना कि मैं नमाज पढ़ रहा था? फरमाया देख रहा था तभी तो बुलाया है। हाय हाय, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जनाब शहीद आपको शादोबाद रखे। भाई पहाड़ वाले, मैंने अभी तक पढ़ा है, अब कुछ करना है, और मेरा वो करना जाया ना हो। आपको पाक बतूल की इज्जत की वास्ता है, तो बच्चों इधर उधर नहीं होने चाहिए। मेरे को देखना है, अब मैंने कुछ कहना नहीं बल्कि कुछ करना है। कहता है अच्छा सरकार, ऐसे भी हो जाता है कि आप बुलाएं तो बंदा नमाज छੱਡ दे, ऐसे हो सकता है? सरकार मैं सोच के बता, तुझे नमाज दी किसने? शाह जी आपने बुला तो रहा था, सरकार आप। फरमाया अच्छा, अब मैं कुछ करने लगा हूं। फरमाया कल इतने बज के इतने मिनट पर मस्जिद में आ जाना, मैं तुझे बताऊंगा नमाज क्या है, मुस्तफा क्या है। साथ मेरे साथ दे, ये नुकर है, ये नुकर है, ये सेंटर है। 7-8 का अर्ध क्या नाम है, मजबूरी जो है समझने थोड़ा काम है। 7-8 का अर्ध। मेरे भाई तुझे ना रखो, अंदर तो रखो। 7-8 का
ٹھیک ہے جی، یہ مسجد مہربانی، یہ مسجد میں آ گئے، ادھر بیٹھ کے ادھر سے نبی نے آنا ہے، آپ کچھ کہنا نہیں کچھ کرنا ہے، یہ آپ ادھر بیٹھے، رسول نے ادھر آنا ہے، سینٹر میں مصلی پہ سلمان کھڑا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کچھ پڑھنا نہیں کچھ کر کے دکھانا ہے، میرا مان نہ ٹوٹے، میرا مان نہ ٹوٹے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی سلمان نستعین پہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے محمد نے کہا سلمان حاجی سرکار، جملہ منہ میں تھا، سرکار نے بولا فوراً سلمان ہٹے ہیں، جی سرکار کہا مجھے پیاس لگی ہے، اچھا سرکار یہ نہیں دیے، میرے نبی نے پانی پکڑا، سرکار کوئی اور نوکری ہے، میں دیکھتا ہوں کون کتنے پانی میں بیٹھا ہے، سرکار کوئی اور نوکری ہے، کبا سلمان اتنے ہی کافی تھا، شاہ جی راضی ہو، بابا جی راضی ہو، یا اصلا راضی ہو، کہاں میں راضی ہوں، میں جاؤں، آ جاؤ، ٹھیک ہے بابا جی۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جو پہنچا میرا سلام ہے، 7-8 رات پہ سامنے آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں سلمان ہو من اہل البیت، کہ سلمان ہمارے گھر کا بندہ ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ جب نماز ٹوٹ جائے پھر شروع سے پڑھی جاتی ہے، سرکار کا سلمان تو بتا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سلمان کہتا بے وقوف ہو، شروع سے وہ پڑھتا ہے جس کی ٹوٹ جائے میری تو قبول ہی آ جائے۔ جناب سیدہ آپ کو شاد آباد رکھے، پاک بی بی تو ہمیں واسطہ رکھے جی، جی مل کے آخری بھائی کر اونچا نعرہ آئے نہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، ابھی مجلس شروع ہوئی تھی لیکن ٹائم نے ساتھ نہیں دیا، میں آئندہ مجھے بلانے کی آپ غلطی کریں گے تو پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ میں بڑا ممنون ہوں کہ پہلی مرتبہ میں یہاں آیا اور آپ نے مجھے ایسے سنا جیسے ہم پرانے رشتہ دار ہیں، اور ولایت سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ میں اتنا کہوں گا تاکہ نماز کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں، قرآن میرے سامنے ہے، باوضو کھڑا ہوں، ممبر پاک ہے، سید سامنے بیٹھے ہیں، اس سے بڑی قسم نہیں، اتنا جملہ کہتا ہوں، مسلمانوں نے اتنا محمد کے بیٹوں کو نہیں مارا، جتنا محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ جناب سیدہ آپ کا غصہ قبول کرے، پاک بھی آپ کو شاد و آباد رکھے، جی مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں پھر کہتا ہوں مسلمانوں نے اتنا سید زادوں کو نہیں مارا جتنا سید زادیوں کو مارا ہے۔ پہلے ایک مثال سنیں گے میرے محترم سامعین، آپ گرے بان پکڑ کے پوچھئے، مجھے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے آپ کی مٹی سے، کسی علاقے کی عزت دیکھنی ہو نا، کسی علاقے کی عزت دیکھنی ہو تو مسائل میں چیک ہوتا ہے، ادھر سے ذاکر مسائل کا لفظ کہتا ہے، بچہ بڑا رو پڑا، سمجھیے جہاں یہ منظر بنے سمجھیے وہ مٹی پاک ہے، وہاں صرف غیرت مند رہتے ہیں۔ رکھو میرے سر پہ قرآن اور اٹھ کے میرا گرے بند پکڑ کے پوچھو ذائقہ محیط بھائی یہ بتا کیسے مارا سیدوں کو، قرآن کی عظمت کی قسم جس سید زادی کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے گھر جا کے مارا ہے، اور مولا تیرا غصہ قبول کرے، پاک بیوی آپ کا ماتم قبول کرے، جس سید زادی کا کوئی بھائی نہیں تھا سید دادا اسے گھر جا کے مارا ہے، اور جس کے 18 بھائی تھے اسے بیدار بلا کے مارا ہے، اور مولا آپ کا غصہ قبول کرے۔ میں نے لمبا مسائل پڑھنا تھا تاکہ آپ کی نماز تمام ہو جائے، لیکن مجھے بابا جی نے حکم دیا ہے کہ بیٹا زیادہ ٹائم نہیں دینا، اب میں 2 منٹ اور پڑھوں گا، تیسرا جملہ نہ مجھ سے پڑھا جائے گا اور نہ آپ سے سنا جائے گا۔ ایک بار میں نے فضائل میں قرآن پکڑا، اب مسائل میں پکڑ رہا ہوں، ایک بار نوکر سمجھ کے مجھے معاف کرنا، اور مجھ پر یقین کیجئے کہ جتنا ابھی تک ہم مسائل پڑھتے ہیں نا یہ 100 میں سے 20% ہے، ایسا کچھ لکھا ہے اگر ہم پڑھیں یا ہم مر جائیں یا ہم مر جائیں۔ میں قرآن پکڑ کے
सर पे रख के कह रहा हूं कि हम अभी तक इतना मसाइल पढ़ते हैं, और वो भी बड़ा छुपा छुपा के इतनी सख्त रिवायतें मक्तल में लिखी हैं, अगर पढ़ा जाए मोमिन टक्करे मार मार के मर जाए। बस मैं 2 जुमले कहूंगा, परदेसी समझ के मुझे माफ करना। गिरेबान मेरा पकड़िए और मुझसे पूछिए जाएगा मुझतो भाई, और पुत्र बता कैसे मारा है सैयदजादियों को। बस इतना कहता हूं, नौकर को माफ करना, मुसाफिर समझ के माफ करना, अपना मेहमान समझ के माफ करना, इतना कहता हूं। यमन का बशिंदा शाम के बाजार में आया, एक कसाब गोश्त बना रहा था, वो उसका शाना हिला के कहता है क्या बात है, जब से मैं इस बाजार में दाखिल हुआ हूँ दीवार की दोनों तरफें सुर्ख हैं, क्या तुमने कुर्बानियां छतों पे शुरू कर दी? उसने चोरी को फेंका, पर्दे को फेंका, मुंह पे मातम करके कहता है अजनबी कि कुर्बानी का जानवरों का खून नहीं, 8 दिन पहले इसी बाजार से अली की बेटियां गुजरी थी। मौला तेरा गुस्सा कबूल करे, मुझे नौकर समझ के माफ करना और मुझे परदेसी समझ के माफ करना, जो बड़ा सच है। यहाँ ज्यादा सैयद बैठे हुए हैं और मुझे नौकर समझ के माफ करना। 8 दिन पहले इसी बाजार, हौसला बाबा जी, हौसला, इसी बाजार से अली की बेटियां गुजरी थी। इतना मारा है शाम वालों ने, कभी इस्तीमाल के साथ कुरान की अजमत की कसम हम छुपा के बचते हैं बाबा जी, हम छुपा के बचते हैं कि कहीं कोई मार ना जाए। एक जुमला हो गया, एक और पढ़ूंगा और इसके बाद मैं नहीं पढ़ सकूंगा, ना मैं पढ़ सकूंगा और ना आप सुन सकेंगे। मसाइब लंबा पढ़ना मकसद नहीं होता, ये एक सिचुएशन होती है जो क्रिएट हो जाए तो हलालियों के जिगर फट जाते हैं। मैं मिसाल दूं या आपको मिसाल दूं, मैं फिर कह रहा हूं, कुरान ये है, अगर मुझे आप तालिब इल्म भी ना समझे, मुझे दो करें, इसे तो कुरान मानते हैं ना, इसके सदके मुझे माफ करना। लिखा है एक बीबी है सैयदजादी जिनका नाम है हजरत सैयदा उम्मे लुकमान। ये सैयदजादी सगी बहन है हजरत सफीर मुस्लिम की, जिनकी लाश को कूफा की हर गली में घुमाया गया था। ये वो सैयदजादों मातमियों, अली वलीउल्लाह वालों, हुसैन का मातम नमाज समझ के करने वालों, अल्लाह तुम्हारे मातम कबूल फरमाए। ये वो सैयदजादी है, छुपाते हैं, हम छुपाते हैं। मैं एक इस बात का करने लगा हूं, नौकर समझ के माफ करना। ये वो सैयदजादी है जो पाक बीबी ज़ैनब के जख्मों की मरहम पट्टी करती थी। 4 दिन मरहम पट्टी की, ऐ कुरान है, इसके वास्ते मुझे माफ करना। 5वें दिन इस बीबी का जिगर फटा, इसकी आंखों से पानी नहीं खून निकला, वो खून बीबी ज़ैनब के चेहरे पे आया। बीबी पाक ने आंख खोली, यूं देखा है उम्मे लुकमान तेरी आंखों से खून बह रहा है। और बीबी 4 दिन हो गए बर्दाश्त करती रही, 5वें दिन सदर जवाब दे गया, मेरा जिगर फट गया है। आलिया मेरा जिगर, भाई हौसला, आलिया मेरा जिगर फट गया है। और मुझे कुरान की अजमत की कसम, और हम जाकर छुपा के पढ़ते हैं और कहीं कोई मोमिन मर न जाए। एक जुमला इज़हार करूंगा, नौकर को माफ करना। लिखा है हुआ क्या है, कहा बीबी मुझे ये बताइए, भाई सैयद बैठे हो, मुझे माफ करना। बीबी मैंने कुछ निशान देखे हैं, बीबी मैंने कुछ निशान देखे हैं, बीबी मैंने कुछ निशान देखे हैं जो न तीर के हैं, न तलवार के हैं, न पत्थर के हैं, न लकड़ी के हैं। बीबी बताइए ये निशान कैसे है जिन्हें देख के मेरा जिगर फट गया। और सैयद मुझे माफ करना। बीबी रो के कहते हो उम्मे लुकमान, शाम के बाजार में एक जालिम ने मुझे धक्का दिया था, मैं मुंह के बल गिरी थी, ऊपर घोड़ा आ गया था और ये घोड़े के सुबह के निशान है। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों है, और ये पूछ और शिया मर क्यों नहीं जाते। भाई हौसला बाबा जी, हौसला। एक जुमला कहना है और आपकी नमाज तमाम कर रहा हूं। और कितना मारा गया है पिंडी वालों और पहाड़ वालों, कितना मारा गया है। और नौकर को माफ करना। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों है, अपनी बहनों बेटियों को साथ मिला के, और रोते क्यों है। आप मुझे बताओ हम क्यों रोते हैं। बाबा जी हौसले के साथ सांस ले लीजिए, 1 मिनट सिर्फ और हौसले के साथ। एक शिया है जिसका नाम है इब्ने मुंजर मदाइनी, ये आपके चौथे मौला का बड़ा मुखलिस शिया था। करीब आ कहता है मौला आप कुरान पढ़ते हैं तो रोते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, पानी को देखते हैं तो रोते हैं, मौला बाजार में जाते हैं तो रोते हैं। मौला फिर पानी नहीं रोते, खून रोते हैं। मौला गुस्ताखी माफ। कोई एक लम्हा ऐसा बताएंगे जो आपको खून रोने पे मजबूर करता है। मुझे ज़िया शाह जी ने बताया है कि यहाँ सदात भी है। आले रसूल आपको पाक बतूल का वास्ता, नौकर को माफ करना। इमाम फरमाता है इब्ने मुंजर अगर जरूर पूछना है ना तो आप फिर सुन। शाम के बाजार में एक ऐसा भी चौक आया जहां हम पे लकड़ियों से, उबलते हुए पानियों से, पत्थरों की इतनी बारिश हुई कि कितनी देर तक मैं सज्जाद खुदी को न पहचान सका। और
اور میری پتری مجھے نہ پہچان سکی. امام فرماتا ہے کچھ دیر بابا جی حوصلہ، بابا جی حوصلہ. آج میں بتاؤں کتنا مارا گیا ہے سید زادیوں کو. کسی نے پتھر مارا، کسی نے پانی ابال کے زینب آنے میں پھینکا، کسی نے لکڑی ماری، کسی نے چلتی ہوئی آگ پھینکی. میرے سر پہ قرآن ہے اور یہاں تک لکھا ہے. گھر جا کے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہے نا، گھر جا کے اپنی اپنی بیٹیوں سے پوچھنا کہ بیٹا اس کا مطلب کیا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں جس کمینی عورت کے پاس کچھ نہیں تھا نا، وہ پرانے کپڑوں کو آگ لگا کے زینب پہ پھینک دے. اور میری پتری کے رخسار نیلے ہو چکے تھے. مولا رونے والی بات بتائیں تو خون ہوتے ہیں. امام فرماتا ہے جو ہی پتھروں کی آگ کی بارش رکی، اچانک میری ابا کو جھٹکا آیا. امام فرماتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ میں اور باقر ایک کڑی میں قید تھے. بھائی جگر پھٹ رہا ہے آپ کا، مجھے معاف کرنا. امام فرماتا ہے مشکل کے ساتھ جو میں نے پیچھے دیکھا تو منظر کیا تھا، ایک چھوٹی سی 4 سالہ بچی ہے جس کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں، بھیا سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں، بھیا سجاد میں تیری مسکین بہن ہوں، بھیا سجاد میں تیری پھٹے کانوں والی بہن ہوں، بھیا سجاد میں تیری اونٹوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے والی بہن ہوں. بھیا میں تجھے تنگ کرنے نہیں آئی، بھیا میں تجھے ستانے نہیں آئی، بھیا بس ایک گزارش کرنے ہوں جیو میری اپنے وقت کی فاطمہ زہرا اور میری بطول بہن اور میرے بابے کا طویل حکم کر. اور بی بی حوصلہ اور سیدہ مجھے معاف کرنا اور میری مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا. لکھا ہے بی بی روڈ کہتے یا ہی کل شمر ہے اللہ یادربا سوتالا وجہی. بھیا شمر سے کہو میرے منہ پہ تماچے مارے لوہے کے تالیانے نہ مارے. اور بھیا یہ وہاں مارتا ہے جہاں بابا بوسے دیا کرتے تھے اور مار مار کے کہتا ہے گناہ تیرا چچا کہاں ہے، گناہ تیرا عباس کہاں ہے. کوئی ایک مرتبہ آواز دینا میں چھوڑ دوں بھائی، میں جملہ کہوں اور جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. اور میرے پہاڑ والے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، کوئی ذاکر چھپاتے ہیں کوئی مر نہ جائے. اور ذاکر کہتے ہیں شام غریبہ کو آگ لگی تھی، چادریں اتری تھی، بڑا مارا گیا تھا. ہر سید زادی نے اپنے بالوں کا پردہ کیا تھا اور ننھی سکینہ نے کہا تھا بھیا میرے بال چھوٹے ہیں میں کیا کروں. یہ پورا قرآن ہے اور یہ اللہ کے قرآن کا پارا ہے. میں دونوں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح نہیں. یہ ذاکر چھپاتے ہیں کہیں کوئی مر نہ جائے. اور اپنے گھر جا کے دیکھ اور 4 سال کی بیٹی کے بھی اتنے بال ہوتے ہیں کہ وہ چہرہ چھپا لے. سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے، اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا. بی بی کے بالوں سے پکڑ کے اور اتنا مارتا رہا اور بی بی بابا کی لاش پہ گری اور لوگوں نے کہتے بابا آنکھیں کھول کیا مدینے والی سکینہ میں